میری عزت چھلنی چھلنی ہو چکی ہے، میری عصمت دری ہو چکی ہے، مجھے بھوکے بھیڑیوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا ہے۔ آئے میرے ابو جان، کیا میں آپ کی اوپر اتنی بڑی بوجھ بن گئی تھی کہ آپ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکے؟ آپ ایک دن حیدرآباد میں آ کر لڑکے کی گھر و مکان اس کے ماں باپ کو بھی نہ جان سکے؟ کیا میں اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ آپ نے جیسی دین کا نام لیا اور اس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح پہنا؟ اچھا ہے، لڑکے کو نہ تو شادی نہیں ہوتی ہے۔ اِنَّا زَمَن نِکَاحِ بَرْکَتًا آئیسرها مؤونتاً، اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ نکاح اور سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس شادی کے اندر خرچہ سب سے کم ہو، جس کے اندر خرچہ سب نیل ہو، خرچے کا نام نہ ہو، یہ خرچہ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہی کلکتہ کی سرزمین ہے میرے بھائیوں۔ آج سے 25 سال پرانا وہ منظر اٹھاؤ، لڑکی کے باپ کا نام سلیم، لڑکی کا نام جمیلہ، اس کی بہن کا نام فاطمہ۔ غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی تھی، جو آتا تھا غربت دیکھ کر رشتہ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ ایک جگہ رشتہ لگ گیا، سلیم صاحب خوش ہے میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، شادی میں 1 مہینہ رہ گیا، لڑکے والے نے جہیز کی ایک لسٹ دے دی۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اتنی جہیز کی اوقات نہیں ہے میری دینے کی۔ رشتہ ٹوٹ گیا اور اس لڑکے کا رشتہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو گیا جو سرکاری نوکری کرتی تھی۔ جب سرکاری نوکری والی لڑکی اس کو ملی تو اس نے سلیم صاحب کی بیٹی سے رشتہ کینسل کر دیا۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتی رہے، لیکن ایک اور رشتہ 2-3 مہینے کے بعد مل گیا۔ اس نے یہ شرط لگا دی کہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، جو کپڑے پہنے ہوگی اسی کپڑے میں تم ودا کر دینا، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، بغیر جہیز کے شادی ہم کریں گے اور شادی سنت رسول کے مطابق ہوگی۔ سلیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کا ٹائم دو۔ ادھر سے لڑکے نے کہا جب شادی سنتی کے مطابق کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے اور مجھے بھی کچھ دینا نہیں ہے، تو 1 مہینہ کیوں، میں کل آ رہا ہوں اور کل ہی ودا کر دیجیے، رخصت کر دیجیے اور میں آپ کی بیٹی کو لے کر چلا ہوں۔ وہ لڑکا پہنچ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ولی کی ضرورت لڑکے کو نہیں پڑتی ہے، لڑکی کو پڑتی ہے۔ لڑکے کا ماں باپ کا اجازت دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لڑکا خود کفیل ہے، کھلانے پلانے کا ذمہ دار لڑکا ہے۔ لڑکے کو اپنے ماں باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں، لڑکی بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ من نکاح من غیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، فنکاحہا باطل، فنکاحہا باطل۔ جس لڑکی نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست و ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ لڑکا لڑکی میں غلط تعلق قائم ہو گیا شادی سے پہلے، اور لڑکی کسی طریقے سے حاملہ ہو گئی۔ سماج کے چودھری مل کے پنچایت بٹھاتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا جرمانہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کی جرمانہ کے ڈر سے کتنا تو دے نہیں پائیں گے، تو چلو لڑکا لڑکی کی شادی کرا دیں۔ سن لیجئے، جو لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی ہے، جس کا حمل ٹھہرا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ بھلے ہی اسی کے ساتھ کیوں نہ نکاح کرو جس کا حمل ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے، اور اس لڑکے کا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کرتے ہیں بہت سے لوگ، چل رہا ہے کٹیہار اور بہار تو بھرا پڑا ایسے کیسوں سے، لڑکی حاملہ ہو گئی، اب لڑکی کے ماں باپ نے کہا تم نے میری بیٹی کی عزت پامال کر دی، اب تم نکاح کرو۔ اور کرائے کی ٹیکسی مولوی کتنا ہے، اپنی جماعت میں کتنے مولوی ہیں جو نکاح پڑھا دیتے ہیں کہ چلو تیرا حمل تو ہی اس کو رکھ۔ میرے بھائیوں، شادی سے پہلے جو حمل ٹھہرا ہے وہ حرام ہے، اب تمہارے نکاح سے حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی ہی جب حلال نہیں تو بچہ کیسے حلال ہے۔ شادی اب ہوئی ہے،
वो शादी से पहले का ठहरा हुआ है, निकाह तो तेरा अब हुआ है, तो इस बच्चे को हलाल कैसे कहा जाएगा? वो बच्चा जब पैदा होगा तो भले ही तू उसका बाप क्यों ना बन जा, भले ही उसके और माँ से निकाह क्यों ना कर ले, लेकिन वो बच्चा अपने बाप की विरासत में हक नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि वो इसका बच्चा निकाह हलाली बच्चा नहीं है। बहुत से कानून हैं, हम इस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक इशारे के तौर पर मैंने ये बात आपके सामने कर दी। समाज के लोगों बचो, आप उस लड़की का शादी उस लड़के से हमल की हालत में नहीं करा सकते हो जिसका हमल ठहर गया, भले ही उसी का हो, निकाह भी उसी के साथ हो रहा हो, लेकिन चूंकि हमल ठहर गया और हालत हमल में निकाह नहीं है, जब तक कि हमल वज़ा ना हो जाए और हमल को जब पैदा ना हो जाए, जब तक बच्चा, अब बच्चा पैदा हो गया, अब लड़का, वही लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन ये बच्चा इसके बावजूद भी हलाल नहीं माना जाएगा। शरम तो इस बच्चे को उसके बाप का नाम भी नहीं, बिन लिखा जाता ना, बिन फला सलौफ पे उसका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। शरण यही है, लेकिन समाज में चल रहा है, अब तो उसको बाप बेटे का नाम भी देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जर्जी साहब अगर उसको बाप का नाम दिया ना दे तो फिर वो अपना बाप किसको ढूंढेगा? ये एक अलग मसला है, और इस पर अगर हमने बहस छेड़ दी तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मेरे भाइयों आगे बढ़िए, मैं कहना ये चाह रहा था कि मन्नत हाथ इसमें भलैया, जिस औरत ने निकाह किया अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर, वो निकाह बातिल है। सलीम साहब के पास वो लड़का आ गया, निकाह हो गया, वो अपने माँ बाप भी लाया था, लेकिन माँ बाप फर्जी थे। उसने भोपाल से अपने एक बूढ़े को पैसा दिया, एक औरत को पैसा दिया, मियाँ बीवी दोनों बूढ़े, और पैसा देकर माँ बाप बनाकर ले आया। इसके बाद वो निकाह के बाद उस लड़की को ले गया जिसका नाम जमीला था, उस लड़की को ले जाता है। भोपाल उतरने वाले ये बूढ़े लोग उतर जाते हैं और लड़की को अपने साथ हैदराबाद ले जाता है। 3 दिन इस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा, और 3 दिन के बाद हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में इस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। 20,000 रुपए में बेच किया इस लड़की को और भाग गया। वो रोती रही, वो चीखती रही। जो लड़का उसके पास आता होटल के मालिक को पैसा देकर, वो उसके सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन जिसने पैसा खर्च किया वो क्यों छोड़ेगा? मालिक अलग मारता था। इसी हाल में कई दिन गुजर गए, पता नहीं किसी लड़की को उसके ऊपर रहम आ गया। जब उसने हाथ पैर जोड़े तो कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान लगती हो, तुम मुझे अपनी पूरी दास्तान बताओ। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा, मैं तेरा भाई हूं, मारो गोली, जो पैसे मेरे मालिक के पास गए जाने दो, बताओ मैं तुम्हारे घर क्या खबर पहुंचाऊं? उस लड़की ने कहा, तुम उधर मुंह करके लेट जाओ, मैं एक लेटर लिखती हूं और इस लेटर को मेरे घर पहुंचा देना। उसने एक लेटर लिखा, पढ़ी लिखी थी, और लेटर लिखने के बाद उसने उस लेटर को चिपका दिया और उस लड़के को रात में ही दे दिया कि तुम चले जाओ और सुनो, ये लेटर मेरे घर मेरे बाप के हाथ में देना, और तुम्हें कसम देती हूं, अल्लाह का वास्ता देती हूं, इस लेटर को तुम पढ़ना नहीं। उसने कहा, तुम्हारी अमानत है, मैं क्यों पढ़ूंगा? उसने उस लेटर को पकड़ा, रात ही में वो निकल गया, और जो ट्रेन कलकत्ता से हैदराबाद से कलकत्ता आने वाली थी, उसी ट्रेन में बैठ जाता है। 2 दिन के बाद वो कलकत्ता उतरता है। एड्रेस वो लड़की दे चुकी थी, वो एड्रेस के मुताबिक आता है, और घर तलाश करके सलीम के घर पहुंच जाता है। दरवाजे को दस्तक देता है, सलीम साहब दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर अजनबी आदमी को देखते हैं। कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी जमीला ने भेजा है और ये लेटर तुम्हें दिया है। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी बेटी का पहला लेटर आया है। उसने लड़के को अंदर बुलाया, और ये खबर जब घर के लोगों को पता चली तो आसपास की सहेलियां भी आ गई, कहने लगी, लेटर पढ़ के सुनाओ, जमीला क्या बता रही है, उसकी खैरियत कैसी है, खुश तो है, जरा बताओ तो सही, जाने की बात भूल गई हमें। बाप ने लेटर खोला
माँ उस जमीला की उसी के पास बैठी हुई है और छोटी बहन फातिमा भी बैठी हुई है, मोहल्ले की सहेलियां भी बैठी हुई है। यहाँ लेटर पढ़ा जा रहा है, प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद क्या आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत अल्लाह के हवाले। अब्बू जान, आपने मेरा रिश्ता कर दिया है एक लड़के से जो हैदराबाद का रहने वाला है। आप समझ रहे होंगे कि वो फरिश्ता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि वो फरिश्ता नहीं, अगले दर्जे का शैतान है। अब्बू जान, उसने 3 दिन मुझे अपने पास रखा और उसके बाद उसने मुझे 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया, 20,000 रुपए में बेच दिया। मेरी इज्जत छलनी छलनी हो चुकी है, मेरी इस्मत दरी हो चुकी है, मुझे भूखे भेड़ियों ने नोच नोच के खा लिया है। आए मेरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी बोझ बन गई थी कि आप लड़के की हकीकत भी तलाश न कर सके। आप एक दिन हैदराबाद में आकर लड़के की घर और मकान, उसके माँ बाप को भी न जान सके। क्या मैं इतनी भारी हो चुकी थी कि आपने जैसी दीन का नाम लिया और उसके साथ आपने मेरा निकाह करा दिया। अरे अब्बू जान, अब मैं अपना कौन सा चेहरा लेकर आपके पास आऊं, मैं अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाऊं, मैं अपनी छोटी बहन के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। अरे अब्बू, मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़ के आई हूं, कल उसकी भी शादी होगी। अरे अब्बू, कहीं ऐसा ना हो कि जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है कल उसको भी देखना पड़े, इसलिए मेरी एक नसीहत है। अरे अब्बू जान, मैं हुक्म देने वाली आपको कौन होती हूँ। अरे अब्बू जान, एक नसीहत मेरी मान लेना, छोटी बहन फातिमा के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और इतना माल कमा लो, इतना माल कमा लो। आगे वाले जुमले जो बताने में मुझे भी बड़ी शर्म आती है, लेकिन शर्म किस बात की है। उसने लिखा, इतना कमा लो, इतना कमा लो कि जब मेरी बहन फातिमा का रिश्ता कोई लेकर आए तो वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। अरे अब्बू जान, अब मैं अपनी नापाक शक्ल अपने गांव में लेकर नहीं आना चाहती। आपकी बहन, आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी नहीं, हाँ, उसने जुमला भी लिखा था। अरे अब्बू जान, सुबह का सूरज निकलने से पहले मैंने अपना फंदा दुपट्टा पंखी में लटका रखा है और सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी दुनिया छोड़ चुकी होगी। मुझे मालूम है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है ऐसी दलदल में ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर मेरा मर जाना है। अरे अब्बू जान, आखिर में आपकी बेटी जमीला बदनसीब जो आपकी न हो सकी और उसने हमेशा हमेश के लिए दम तोड़ दिया, फांसी के फंदे पर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है इस लड़की के खुदकुशी का? समाज, सोसाइटी, जो सामान दिखा दिखा कर देते हैं शादी के मौके पर। गरीब की लड़की जब उस शादी के सामान को देखती है तो उसकी आह निकलती है, मेरे माँ बाप इतना सामान कहां से लाए। जितनी भी लड़कियां खुदकुशी करके जहेज न होने की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, इन लड़कियों के गुनाह के साथ साथ ये गुनाह उन अमीरों की खोपड़ी पे भी डाला जाएगा जो अपनी बेटियों की शादी में लंबा चौड़ा जहेज दिखा दिखा के। कहां हैं आप? हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। मैं मिल चुका हूं सलीम साहब से, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं एक बाप का दर्द। पूछो उस आदमी से क्या गुजरती है उसकी। ये तो वाकई है।